दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुडविल, द टॉपिक ऑफ क्लास 12 अकाउंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, goodwill is the present estimate of the future prospects of the business. It is the forecast of the increased profits of the business. It is earned by those firms only who anticipate a prosperous future and excellent profits in future. It means reputation or image of the business in the market. Goodwill of a business attracts more customers towards itself like a magnet. As a result, the business earns excess profits over the normally earned profits on the same capital employed by the other concerns engaged in the same business. Goodwill is the mirror which reflects the true view of the business and also its future prospects, provided it is calculated honestly and sincerely. If we say, if capital is lost, nothing is lost. If customers are lost, something is lost. And if goodwill is lost, everything is lost. Goodwill no doubt reflects sound and healthy practice of business, financial soundness of the firm, and the degree of greatness of the firm. Every firm should try to build up its goodwill. Just as the cement binds together the bricks and other building material into walls, similarly, goodwill binds together the other assets and aspects of the business into cohesive whole. There are various methods for valuation of goodwill. First is average profit method. It includes two parts. First is simple average method. Next is weighted average method. Method number two, super profit method. Method number three, method of capitalization. It includes again two parts. First is simple profit method of capitalization. Next is average profit method of capitalization. And we will discuss where valuation of goodwill is necessary. First part, when a new partner is admitted in the business, when a partner retires from the firm, when a partner dies, when there is a change in profit sharing ratio among partners, when a partnership firm is sold to a company, when two or more than two partnership firms are amalgamated. We will solve one question. Question is, find out the value of goodwill by average profit method. हमें गिवन है ईयर्स 1, 2, 3, 4. हमें गिवन है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 50,000, 1,00,000, 20,000 और 30,000 हमें लॉस गिवन है और गिवन है 3 years परचेज. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम निकालेंगे एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट. वो निकलता है, हम सभी प्रॉफिट को ऐड करेंगे 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000 तो लॉस को
माइनस करो अपॉन कितने ईयर हैं, अपॉन 4, ये बनता है 35,000। ये आपका एपी निकल गया। इसका फॉर्मूला है फॉर्मूला ऑफ गुडविल, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर्मूला लगा के इसके अमाउंट आप पुट कर दीजिए। एपी अमाउंट निकलता है 35,000 इंटू 3 आ गया 1,05,000। आपका ये अमाउंट ऑफ गुडविल है। दोस्तों फॉर्मूले को लर्न कीजिए, देन डू प्रैक्टिस। अब हम करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू डब्ल्यू, ए पी मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमें गिवन है इसमें 4 ईयर्स परचेज, हमें ईयर्स भी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। ईयर्स में है 2006, 2007, 2008। प्रॉफिट गिवन है 6,000, 2,000, 8,000। वेट हमने खुद निकालना है 1, 2, 3। अगर आगे होगा तो आगे 4, 5, 6 आ जाएगा। फिलहाल यहाँ 3 है तो 1, 2, 3 ही आएगा। हमने वेट को ऐड किया, आया 6। अब निकालना है प्रोडक्ट, वो होता है प्रॉफिट्स इनटू वेट। वो हो गया 6,000, 4,000 एंड 24,000। इसको ऐड करेंगे, ये बन गया 34,000। हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन वेट। ये बनता है 5,667। फॉर्मूला लगाओ इंटू 4, ये बन गया 22,668। इट इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल। देन सुपर प्रॉफिट मेथड इक्वल टू, इसमें है एस पी इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट में हुआ एन पी। एन पी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें गिवन नहीं है सीई, शॉर्ट में बोलते हैं इसको, इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। अब एक क्वेश्चन निकालते हैं। हमें गिवन है कैपिटल 2 लाख, रेट है 15%, प्रॉफिट है 7,000 और गिवन है 3 ईयर्स परचेज। हमें एनपी गिवन है, एनपी हमें निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट आ गया 30,000। एसपी एपी माइनस एनपी, एपी हमें गिवन है, एनपी हमने निकाला तो माइनस कीजिए, आ गया 7,000। देन फॉर्मूला ऑफ गुडविल एसपी इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, ये बनता है 21,000। तो ये आपका आंसर निकल गया वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब लास्ट मेथड है मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट। हमें गिवन है टोटल एसेट्स 5 लाख, गिवन है लायबिलिटीज़ 1 लाख, रेट गिवन है, एपी गिवन है। पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, वो होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। सो 5 लाख माइनस 1 लाख वो आता है 4 लाख। एन पी इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट, वो बनता है 40,000। देन फॉर्मूला ऑफ एस पी इक्वल टू ए पी माइनस एन पी। हमारे पास ए पी भी है, एन पी भी है, वो आता है 15,000। फॉर्मूला ऑफ गुडविल एस पी इंटू 100 अपॉन रेट। एस पी हमारा गिवन है 15,000 इंटू 100 अपॉन 10, ये बनता है 1.5 लाख वैल्यू ऑफ गुडविल। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला इसका है फॉर्मूला ऑफ गुडविल इक्वल टू सी वी माइनस सी ई। सी वी हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू, सी ई हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले हम निकालेंगे सी वी।
CV होता है AP इंटू 100/100। AP हमें गिवन था 55,000 इंटू 100/10, ये बन गया 5,50,000। अब हम निकालेंगे गुडविल, फॉर्मूला लगा के CV माइनस CE, 5,50,000 माइनस 4 लाख, वो आता 1.5 लाख। दोस्तों इसमें दोनों मेथड में आंसर सेम आता है, 1.5 लाख 1.5 लाख। हमने हर एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप लोग इसी यूनिट से जो आपकी बुक्स में क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व कीजिए, उसमें एग्जांपल होंगी वो भी सॉल्व कीजिए। फॉर्मूले तो सेम चलेंगे, आपको फॉर्मूला करना आना चाहिए। फॉर्मूले को समझिए, इसको याद कीजिए एंड देन डू प्रैक्टिस। आई होप आपको सब मेथड समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक एंड शेयर, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।